श्री वाहेगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत अजोनी सैभं गुर प्रसाद। जन्म मरण दोहूं मैं नाही जन पर उपकारी आए। बेसुमार अथाह अगंत अतोले ज्यों बुलावा त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग सत्संगत जीओ, गुरमत गुरबाणी इतिहासक विचारां आरंभ करां। पेशतर सतगुर दी बख्शी सनिमर फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संडे दे विशेष सुबह दे दीवान दे विच सिख जगत दे नामवर कीर्तनीय भाई ओंकार सिंह जी पासों बेहतरीन गुरबाणी कीर्तन सरवण कर रहे सी। कीर्तन एक बंदगी है, कीर्तन एक इबादत है। अगर सुरत जुड़ जाए तो आसा की वार दे कीर्तन ते उपरंत अज दा विशेष दीवान ब्रह्म क्षेत्रीय ब्रह्म निष्ठीय ब्रह्म विभूति ब्रह्म स्वरूप गुरमुख प्यारे डॉक्टर भाई वीर सिंह जी की याद दे विच है। और इस गुरु घर दे फाउंडर सेवादार ब्रिगेडियर जी, उन्हां दा समूह परिवार, भैन जी मनजीत कौर जी, ते मैनू याद है मैं ग्लैनकोव जां वर्जीनिया मैरीलैंड भी हाज़री भरी। शमशेर सिंह जी परिवार, ये सारे परिवार भाई साहब जी दीयां यादां नूं तरोताज़ा करते हैं, मनाते हैं। ते साडा ये फर्ज भी जरूरी है कि वो महान शख्सियतां परसनैलिटी जिन्हां ने गुरु पंथ की सेवा की है, ते सेवा भी बड़े औखे टाइम ते कीती है, बड़े विखम टाइम ते कीती है। वैसे तो ये मार्ग ही विखम मार्ग है, औखा मार्ग है, कोई सौखा मार्ग नहीं है। मैं कई बार अर्ज करदा है, एक मार्ग है जिसते तन चलदा है, शरीर चलदा है। एक मार्ग है जिसते सुरत चलदी है, मन चलदा है। उस मार्ग नूं धन गुरु नानक देव जी महाराज पंथ कहंदे ने। पंथ पंथ ते पंथी दो शब्द है। पंथ का मतलब है मार्ग। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। वो एक पंथ चलाया, रस्ता गामजन कीता। जो रस्ते ते चलण वाला है उन्होंने कहते ने पंथी। तो एक मार्ग है जिसते तन चलता है, एक मार्ग है जिसते सुरत चलती है, मन चलता है, बुद्ध चलता है, चेतना चलती है।
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਮਾਰਗ ਭੀਖਮ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੀਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਬੜਾ ਭੀਖਮ ਦੌਰ, ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਦੌਰ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਲਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਵੀ ਧਨੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਸਮ ਤਾ ਮਮਤਾ ਕਵਤਾ, ਕਵਤਾਸਮ ਤਾ ਮਮਤਾ ਕਵਤਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੀਤ ਬਣ ਕੇ, ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਕੇ, ਕਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਾਂ। ਤਾਸਮ ਤਾ ਮਮਤਾ ਕਵਤਾ, ਕਵਤਾਸਮ ਤਾ ਮਮਤਾ ਕਵਤਾ। ਜਿਤਨਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਹੈ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹੈ, ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਹੈ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੀਮਤਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨੈਨੀਤਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਾਨਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸੇਂਟ ਜੋਜ਼ਫ ਕਾਲਜ, ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨ ਕਾਲਜ, ਸ਼ੇਰਵੁੱਡ ਕਾਲਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ DAV ਕਾਲਜ ਆਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣ ਲਾਹੌਰ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਲਾਹੌਰੀ ਕਾਲਜ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਆਪ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਮਤੀਏ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੀਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਰਸ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੋ ਕਲਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, IJ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਕਾਲਰ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹੀ, 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ DAV ਕਾਲਜ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। 2 ਸਦਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡਸ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੇਅਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜਿਸ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛੋਹਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ,
मैं बेनती करा, ये गल कहनी बड़ी सौखी है, इनू प्रैक्टिकल करना बड़ा औखा है। जिन्होंने रघबीर सिंह वीर जी दीयां पुस्तक पढ़ियां हैं, उन्होंने भी जिक्र किया कि जो मैं भाई वीर सिंह जी नूं पढ़दा है तो मैनू इंज लगता है कि जो आत्मक मंडल दे विच आनंद है, जिसनों धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी कहती है कि उस मंडल दे विच की है, उस मंडल की अवस्था की है। महाराज की बाणी कहती है, नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम, सुन समाद अनहद ते नाद, कहण न जाई अचरज बिस्माद। उथे अचरज बिस्माद है सुन मंडल दे विच। भाई वीर सिंह जी ने उन्होंने अपने प्रैक्टिकल कवितावां दे विच उहदा जिक्र किया है, जिवें गुरबाणी च जिक्र है उस अवस्था का। क्योंकि मैं जो कुछ तुहानूं बयान करांगा, मैं पढ़िया है, मैं सुनिया है, गुस्ताखी माफ में देखिया नहीं। पंथ रतन गुरमत विद्या मार्टन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन एक गल कहते होंदे सन, इस स्टेज पर उन्होंने बहुत लंबा टाइम कथा की, बड़ा इत्थों की संगत नाल प्रेम प्यार भी है। तो जो पहली बार मैं कैलीफोर्निया आया ना फ्री माउंट, तो मैनू वो कह लगे, मैनू अज भी याद है, कहते मैं लॉन्ग आईलैंड जाना। मैं कभी ना ही नहीं सुनिया भी वो लॉन्ग आईलैंड। मैं क्या शायद कोई बड़ा वड्डा आईलैंड ही होएगा। मेरी एक मन की अवस्था सी, मैं क्या शायद कोई आईलैंड होएगा। तो मैं कुदरती उन्होंने पूछा, मैं क्या अमेरिका च ही है? तो कहते बहुत वड्डा आईलैंड है, तो संगत भी काफ़ी है। मैं बेनती करा, इत्थे आउंदे सन ते उन्हां दा एक बचन है, वो कहते मैं जो कह रहे हैं वो पढ़िया कह रहे हैं, सुनिया कह रहे हैं, पर भगत ते गुरु जो कह रहे हैं वो देखिया कह रहे हैं, हंडाया कह रहे हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दी है, मेरी नहीं, मैं आप जी के सामने रख दिया। वो कहते सन, एक माँ है, उन्हें प्रसूत की पीड़ा नूं सह के बच्चे नूं जन्म दिता है, तो बच्चे की वैल्यू माँ नूं पता है कि इनू किवें जन्म दिता है तो किवें पालिया है। एक पिता ने बड़े औखे हो के बच्चे नूं पालिया, वो पिता नूं पता किवें पालिया, बच्चे नूं की पता है पिता का जन्म की जाने पूत। भगत जना ने आत्मक मंडल दे विच जो कुछ देखे है उन्होंने बयान किया है। संतन की सुन साची साखी, जो पेखे सो बोलत आखी। जो देखे है उन्होंने बयान किया है। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की मेहर करा, मेरे साइयां जी पढ़ो किधरे, कंब की कलाई पढ़ो किधरे। वो एक अवस्था नूं बयान करते हैं, तो मैं कई दफ़ा सोचना ये अवस्था दे विच वो आप ही रह रहे हैं। मनुख दे वेदांत दे आचार्य ने 3 अवस्थावां मनियां है, पता केड़ी केड़ी? उन्होंने कहते हैं जागृत अवस्था, सुपन अवस्था, सखोपत अवस्था। ये 3 अवस्था है। तो चौथी जिहड़ी अवस्था है इन्हां तिन्नां तो पार है, उन्होंने सखोपत कहते हैं, तुरी अवस्था कहते हैं, समाधि की अवस्था। मनुख जी रहा है तो 3 अवस्थावां च जी रहा है, जां जागृत है, जां सुपन है, जां जागया होया जां सुता है। 2 ही है ना काम, जां जाग रहा है जां सुता है। 2 ही बंदा दे शरीर दीयां अवस्थावां हैं। हुण असीं जाग रहे हैं, रात नूं सो रहे हैं, ये गल वखरी है। जितने वैसटर्न कंट्री है उहदे विच हर बंदे दा जिहड़ा सौण दा स्कैजूल अलग अलग है। मैं पढ़ के हैरान हो गया, मोर दैन 60% ऑफ अमेरिकन पीपल, मोर दैन 60 वो इंसमोनिया तो पीरियड है, नींद आउंदी नहीं, नींद दीयां दवाइयां खांदे ने। मोर दैन 60 इंग्लैंड दे विच भी मैं देखा, जर्मन च भी देखा, हॉलैंड च भी देखा, बकायदा ओवर द काउंटर मेलाटोनियन पेटेंट मेडिसन है, बहुत सारी बिकती है। मैं हैरान ही हो गया।
ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਵੈਦਾਂਤ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੀਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਤੁਰੀਆ ਪਦ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡ੍ਰੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਨ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਨ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਵੇ तो एक बच्चा बेचारा भूखा गरीब बच्चा, मुफलिस बच्चा, तो वो कहता 2 ते 2 कितने होंदे है? 2 + 2। तो वो बच्चा कहता 4 रोटियां। वो कहता 4 तो होंदे है, 4 रोटियां। कहता मैंने तो रोटी दिखती है और कुछ नहीं। निर्धन बंदा धन के सुपने लेंदा है, निर्धन बंदा धनवान होने के सुपने लेंदा है, भुखा बंदा भोजन के सुपने लेंदा है। तो आप सुन के हैरान होवोगे, उन्होंने सुपने में रोटियां दिखणगियां, सुपने में धन दिखेगा। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी कहती है भगत जन भी सुपना की दुनिया च हुंदे ने, पर उन्होंने सुपना पता की आउंदा है, उन्होंने ख्वाब पता की आउंदा है। उन्होंने सुपना आउंदा है काहदा कि हे प्रभु तू मैनू मिल, तू मैनू मिल। जे बाहर नहीं मिलिया तो चलो कोई नहीं, तेरे नाम का सुपना ही आ जाए। सुपन चरित्र मित्र आज मोरे आए हैं। वो सुपने दे विच भी प्रभु के दर्शनों की मंग करता है। जिवें प्यासा बंदा बार बार पानी की मंग करता, क्योंकि प्यास है अंदर। खैर भगवान का शुक्र है, निरंकार का शुक्र है, असीं ते इन्हां मुल्कां च रहिंदे हां जिथे पानी की कमी कोई नहीं। मेरे वर्गा गुस्ताखी माफ नहांदा है तो मेरा ख्याल है अद्धी टैंकी वरत जाता है। गर्म पानी आ रहा है, मैं ऐसे मुल्क देखे एक लोटे पानी नूं तरसदे, एक लोटा पानी तरसदा। नेपाल दे विच काठमंडू में गुरुद्वारा शायद कपल अस्थान दे उत्ते है, वो मैं कमरे च गया, टूटी खोली पानी कोई नहीं। वो मैनू सज्जन शायद उत्थे भाई गोबिंद सिंह सन, कहन लगे भाजी तुहानू सवेरे नहाना पैंदा, इत्थे सवेरे ही पानी आंदा, सारा दिन पानी आउंदा ही नहीं। एडा वड्डा शहर। वो वाकई में गुरुद्वारे के बगल च निकलिया तो लेडीज़ बेचारियां जड़ियां मटके लै लै के लाइनां ला के बैठियां हुई।
मैं अर्ज करा, पानी की वैल्यू प्यासे नूं पता है, भोजन की वैल्यू भुखे नूं पता है। भगत नामदेव जी का एक ख्याल भी आ गया, आपके सामने रखते हैं। श्री नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र तो चलते चलते पंजाब की यात्रा ते आए। हुण घट तो घट 3000 मील का सफ़र है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, काठियावाड़ है, जैसलमेर है, राजस्थान है, 2,500-3,000 मील का सफ़र। भगत सिरमौर श्री नामदेव जी उतों चलते चलते पंजाब की धरती ते आए। मैं उन्हां दी जयंती ते कई दफ़ा ये घटना का जिक्र किया। कोई छोटी यात्रा नहीं, रस्ते च बड़ियां उन्होंने मुश्किल आईयां ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च दर्ज है। हुणे आसा दी वार च भी कीर्तन होया, तुसीं सुनिया। वो ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम है जिहड़ी नामदेव जी ने आसा दी वार दे विच महाराज ने लिखी है। किहड़ी? हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाकश दुष्टर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देओ मुख लाया। वो ट्रैवलिंग का ही है, उन्होंने ट्रैवलिंग। खैर वो चलदियां चलदियां मारवाड़ के इलाके जा गए। जैसलमेर का इलाका, मारवाड़ का इलाका। हुण वो इलाका जिन्हों ने देखा, मैं करीबन उदयपुर तो देखा है। उदयपुर तो एक कलुंदरा गांव तिकर में 100 मील का सफ़र भी किया। आप सुन के हैरान होवोगे, 20 मील अज भी उत्थे पानी नहीं है। 20 मील पानी नहीं है। औरतां मटका सिर ते रखदियां, 2-2 मटके बेचारियां 20 मील से भर के लियाउंदियां। भगत नामदेव जी ने उसका जिक्र किया है। भगत नामदेव जी महाराज के बड़े मधुर बोल, वो पता की कहते हैं, ध्यान नाल सरवण करना। मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला करहला। वो मारवाड़ का इलाका, तो ये बोली भी उधर की बोली है, पंजाब की बोली नहीं है। उधर की बोली राजस्थान जो रीजनल जिन्हों असी लैंग्वेज कहने हैं, मेवाड़ मारवाड़, उधर की बोली है, राजस्थानी भाषा है। मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला। श्री नामदेव कहते हैं, हे प्रभु, हे बीठल, मैनू तेरे नाल प्यार है, तेरे नाल मुहब्बत है। पता किंज मुहब्बत है? ध्यान नाल सरवण करना। श्री नामदेव उदाहरण देखो दे रहे। पता किंज मुहब्बत है? मारवाड़ जैसे नीर बालहा। नीर कहते हैं पानी नूं, नीर पानी। जिवें मेवाड़ निवासी नूं पानी नाल प्यार है, हे प्रभु मैनू तेरे नाल प्यार है। हुण एक बोध भगत रविदास जी का भी आप जी के सामने रखा। कोई जी रहा है धन की लालसा च, कोई जी रहा है पदार्थ की लालसा च, कोई जी रहा है परिवार की लालसा च, कोई जी रहा है पुत्रां की लालसा विच। भगत रविदास कहते हैं, हे प्रभु मैं एक आस ते प्यास ची जी रहा। केड़ी? कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। तो भगत सुपने की अवस्था विच भी वाहिगुरू नूं मंगदे ने। उस सुपने विच भी प्रभु के दर्शनां की चाहत करते हैं। सुपन चरित्र मित्र आज मोरे आए हैं। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की जदों मैं वो रवाई पढ़दा ना, मैं हैरान। इंज लगता जो महाराज ने बाणी च लिखिया वो प्रैक्टिकल हंडा रहे। पता भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कहते लिखते हैं? भाई साहब कहते हैं, सुपने विच तुसी मिले असानू, असां ता गल वकड़ी पाई। हे प्रभु तुसी सुपने विच दर्शन दिते। बड़े कीमती बोल भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने। सुपने विच तुसी मिले असानू, असां ता गल वकड़ी पाई।
पर जदों पकड़न दा यतन कीता, जदों गल वकल दी पाण दा यतन कीता, बगलगीर करन दा यतन कीता, ते भाई साहब भाई वीर सिंह जी की अवस्था देखो, उन्हां दी उचाई देखो, उन्हां दी पकड़ देखो। पता की कहंदे ने, निरा नूर तुसी हथ ना आए, साडी कंबदी रही कलाई। हे प्रभु, क्योंकि परमात्मा के दो रूप हैं, सनातन धर्म, जैन धर्म ते सिख धर्म ने दो रूप मन्ने। वो किधरे सुरगुण है, किधरे निर्गुण है, किधरे जड़ है, किधरे चेतन है। सरगुण रूप दे विच वो फुल है, निर्गुण रूप दे विच वो सुगंधी है। जिवें फुल दिखाई देंदा, गुलाब दा फुल इत्थे भी लगे हुए है, गुलाब दे भांत भांत दे फुल। ये गल खरी है, फुल है पर सुगंधी नहीं है। जिन्होंने कैलीफोर्निया फ्रीमोंट गुरुद्वारा देखा होवे ना, बड़ी सुंदर पार्किंग है, तो मेरा ख्याल है संगत भी उत्थे, महाराज की बड़ी कृपा, मैं उत्थे लंबा टाइम कथा करता रहा, तो बड़े तरह के फुल, बड़ा प्यारा इलाका है, बड़े तरह के फुल। वो मैं फुलों का शुरू तो ही शौकीन सी, कभी उस फुल नूं पकड़ा, कभी उन्होंने पकड़ा। खुशबू है ही नहीं, मुअत्तरता है ही नहीं, सुगंधी है ही नहीं। वो मेरे नाल एक सज्जन सी, वो बड़ा फिलोसफर सी, मैनूं कहंदा भाई साहब तुहानूं एक गल दसदा। मैं क्या की, गुस्ताखी माफ दे बोल आ गए। कहंदा इत्थे फुल्लां दे विच खुशबू नहीं, बंदियां च रूह नहीं है। इत्थे इस तरह का ही काम है। मैं अर्ज करां, निर्गुण रूप दे विच प्रभु खुशबू है, सरगुण रूप दे विच वो फुल है, दिखाई देता है पर खुशबू दिखाई नहीं देती। भाई साहब भाई वीर सिंह जी निर्गुण रूप का जिक्र कर रहे हैं। कहते सोचिया तेनू हे प्रभु पकड़िए, तेनू नमस्कार करिए, तेनू प्रणाम करिए, तेनू डंडौत बंदन करिए, तेरी झलक मिली, सुपने आया पी गया। महाराज कहते ने सुपने दे विच वो झलक मिली। भाई वीर सिंह जी कहते ने सुपने विच वो झलक मिली। सुपने विच तुसी मिले असानू, असां तां गल वकड़ी पाई। पर भाई वीर सिंह जी की अवस्था में बार बार कह रहा हैरान, निरा नूर तुसी हथ ना आए, साडी कंबदी रही कलाई। देखिया है प्रभु तू ते नूर ही नूर है, तू ते चानना ही चानना है, तू ते लाइट ही है। और लाइट नूं कौन पकड़ सकता है? कोई बंदे नूं को लाइट नूं पकड़, नूर नूं पकड़, सूरज की धुप नूं पकड़, बल्ब की रोशनी नूं पकड़, हाथ च नहीं पकड़िया जा सकता। निरा नूर तुसी हथ ना आए, साडी कंबदी रही कलाई। तो फिर भाई साहब जी दी रचना जे पढ़ीए ना, मेरा ख्याल है एक हफ्ता 10 हफ्ते भी घट है जड़ा उन्होंने ग्रंथां दे टीके कीते, संस्कृत के ग्रंथां दे उल्थे कीते, ब्रिज भाषा भरथरी वर्गियां दे उन्होंने भाई वीर सिंह जी ने उल्थे कीते। तो मैं उस दिन भी बेनती की सी, इस गुरु घर के उत्ते महाराज की बख्शिश है, जो आईदा है मत्था टेकी दा भाई साहब का स्टाल बाहर ही लगा है, किताबां का खजाना बाहर ही पिया है। वो हर वेले याद विच रहिंदे, हर वेले चेते च रहिंदे, हर वेले सिमरती च रहिंदे। वैसे तुसीं उन्हां दा इन्ना क खजाना है कि पहली सिख एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस पहली वो कंडक्ट वो अरेंज ही डॉक्टर भाई वीर सिंह जी ने की है। वो जागृति उन्होंने पैदा की है। फिर इत्थे ही बस नहीं, भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने नावल पढ़ के देखो। वैसे तो आप नावल पढ़ी दो, शैक्सपीयर का पढ़ लो या किसी का भी पढ़ लो, उन्होंने नावल पढ़ो तो गुरु इतिहास नाल जोड़ते हैं। सुंदरी पढ़ लो, नोद सिंह पढ़ लो, विजय सिंह पढ़ लो, वो गुरु इतिहास नाल जोड़ते हैं, गुरबाणी नाल जोड़ते हैं। तो उन्होंने उस वक्त वो चेतनता पैदा की जदों मैं अर्ज करा सिख नौजवान पतत हो रहे सन,
भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने न्यूज़ पेपर शुरू किया, खालसा समाचार आरंभ किया। फिर इत्थे ही बस नहीं, डॉक्टर भाई वीर सिंह जी का इन्ना ज़्यादा प्रभाव, क्योंकि वो कीर्तन के बड़े रसीए सन, कीर्तन सुनन दे। मैं उस दिन भी बेनती की, फिर करा, दो तरह दीयां सेवा हैं। मैं बोल रहा, तुसी सुन रहे हो, कीर्तन कोई कर रहा है, तुसी सुन रहे हो, पाठ कोई कर रहा है, तुसी सुन रहे हो। तो हुण ग्रेड होंदे ना, कोई फर्स्ट ग्रेड है, कोई सैकंड है, कोई थर्ड है। ग्रेड है फर्स्ट, सैकंड, थर्ड। धन गुरु अमरदास जी ने फर्स्ट ग्रेड तुहाडा बंदिया है। फर्स्ट वो तुसी हो, गुस्ताखी माफ, वो तुहाडा ग्रेड है। पता गुरु अमरदास जी की कहते हैं, सुनते पनीत। पहले तुहाडी गल है, जड़े सुन रहे हैं, फिर साडी है कहते पवित्र। पहला जड़ा फर्स्ट ग्रेड है वो सुनन वाले का है। तो फिर मैं ये भी अर्ज करा, बोल पंथ रतन मानयोग मस्कीन साहब दे आ, तुसी सुने होने, वो कहते ही दुनिया विच कोई काम औखा है, सुनना ही बड़ा औखा है। सरवण करना बड़ा औखा है, सुनना बड़ा औखा है, कहना बड़ा सौखा है। वो अक्सर कहते होंगे सी, कोई 2 घंटे पाठ कर सकता है, गुस्ताखी माफ रोल ला सकता, 10 मिनट सुन नहीं सकता। सुनना बड़ा औखा है। कोई घंटा कथा कर सकता है, 10 मिनट सुननी बड़ी औखी है। कोई पाठ कर सकता है, सुनना बड़ा औखा है। हुण मैं अर्ज करा, मन करके सुनना होर भी औखा है। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी कीर्तन दे बहुत वड्डे रसीआ, सुनन दे, ते दरबार साहब नाल उन्हां दा अथाह प्रेम, अथाह प्यार। वैसे तो दरबार साहब हर सिख के हिरदे च है। मैं बेनती करा, हर सिख के हिरदे च। मैं ब्लू स्टार ऑपरेशन सी ना, पिछले एतवार मैं जिक्र किया है कि मैं दुबई दे विच देखिया, बॉम्बे दे विच एक मुहम्मद अली रोड है, जोड़े बॉम्बे रहिंदे हुण उन्होंने पता है, वो काफ़ी इस्लामिक एरिया है। खैर वो दुबई है, कतर है, बहरीन है, तो कंट्री इस्लामिक कंट्री है। वो मैं देखिया जदों नमाज पढ़ते ना एयरपोर्ट दे, ते वो नमाज नू ख़त्म करके, चाहे फजर की नमाज है, चाहे खिजर की नमाज है, जिमें असी शाम नू रहरास का पाठ करते, उन्होंने 5 नमाज़ां च नमाज़ां फजर की नमाज कहते, अदल है, खिदर है, 5 तरह दीयां नमाज़ां। वो प्रेयर मक्के वाल मूँह करके करते, मक्के वाल प्रेयर जिहड़ी है ना, वो मक्के वाल मूँह करके करते। प्रार्थना मक्का भावें सऊदी अरब च है, वो प्रार्थना उधर नूं करते। सिख जदों भी अरदास करता है, चाहे इत्थे करता है, चाहे लॉस एंजलस कर रहा है, चाहे अफ्रीका कर रहा है, चाहे यूरोप कर रहा है, वो अरदास दे विच कहंदा है, दाना सिरदान नाम दान, श्री अमृतसर साहिब के दर्शन इशनान। ते डॉक्टर भाई वीर सिंह जी सारी उम्र रहे ही अमृतसर। कहते मैं गुरु रामदास के दर तो बाहर जाना ही नहीं, रहे ही अमृतसर है। तो उन्होंने जोड़े कोड है, जिन्हों असी अंग्रेजी च कोटेशन कहने हैं, अंग्रेजी च कोटेशन कहने ना, कोई अरबी दियाँ कोटेशन है, पंजाबी दियाँ कोटेशन है। आ शैंटी जी मैनू भेजते रहते, रात के 12 बजे भी वो सेवा कर देंगे व्हाट्सएप पर। भाई वीर सिंह जी का एक कोट है, पता वो की कहते ने, कहते हरमंदर मेरे शरीर दे मंदिर तो कदी विसरे ना। भाई वीर सिंह जी का वो सारी उम्र अमृतसर रहे। कारण की है कि दरबार साहब के दर्शन इशनान प्राप्त होण। ते मैं बेनती करा, अज भी बड़ियां रूहां ने जड़ियां दरबार साहब नाल बड़ा प्यार करदियां। भाई ओंकार सिंह जी बैठे ने, मेरी पकाली गल हो रही, संत सतनाम सिंह जी सेवा पंथी महापुरख, मैं 20 साल पहले उन्होंने दर्शन किए, कहते हुण भी हैगे ने। वो दरबार साहब दीयां परिक्रमा च ही रहिंदे ने अज भी। कहते गुरु रामदास
तेरे दर तो मैं दूर ना जावां। मैं बेनती करके समाप्ति करा। श्री दरबार साहब रोज़ चंदोआ साहब बदलिया जाता है, उत्थे रुमाला साहब रोज़ बदलिया जाता है। तो जिहड़ी फुल्लां दी अज भी दरबार साहब सेवा हुंदी ना ऑर्गैनिक फ्लावर, वो डॉक्टर भाई वीर सिंह जी के अस्थान तो आउंदे है। ये सेवा भाई वीर सिंह जी ने लई। अज भी वो मैनू उस सदन वाले ने कहा जो जगह वेच देना, तो मेरा ख्याल है अरबां च है, करोड़ां च नहीं। पर डॉक्टर भाई वीर सिंह जी की खुला जगह है, उत्थे ऑर्गैनिक स्वच्छ फ्लावर हुंदे ने। ते उन्होंने कहा हे गुरु रामदास, ये फ्लावर तुहाडे चरणों दे विच अर्पित होण। अज भी उत्थों आउंदे है। ये महान सेवावां करन वाले ब्रह्मनिष्ठीए, ब्रह्म श्रोत्रीए, महान परम विभूषण आत्मा भाई वीर सिंह जी को आप बार बार नमस्कार करिए, बार बार प्रणाम करिए। तो सहवी बाणी च कहते हैं हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, आवे ना जावे ना कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे। बड़ा चंगा उपराला किया, क्योंकि बहुतिਆਂ ਨੂੰ याद ही नहीं होता। महान आत्मा भाई वीर सिंह जी ਦੀਆਂ यादां साढ़े हिरदे च रहन। इतनी सेवा प्रवान करनी। अगला प्रोग्राम वीर जी सिक्का जी आप जी को सरवण कराउणगे। पंथ के महान कीर्तनी है भाई ओंकार सिंह जी ने आप जी को कीर्तन सरवण कराना है। महान विद्वान इत्थे आ रहे हैं। सारी तफसील वीर जी सिक्का जी दसणगे। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी का आगमन पुरब है। मैं बेनती करते हैं 14 तरीक को गुरु ग्रंथ साहब विच आए भगतां दे विचों सब तो वध बाणी कबीर जी की है, उन्हां दा भी जन्म दिन है। वध चढ़ के हाज़रियाँ भरो। दास विचारां आप दे समस्त भेंट करेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।